basic mathematical tool which are must or necessary in the derivation of physics. Okay, so today we will start from the topic that is known as trigonometry. So what is trigonometry? As हम लोग जानते हैं सभी कि आप सभी लोग अभी 10th पास करके आए हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. सो ट्रिग्नोमेट्री हैज़ 3 words which is commonly known as एक ट्राई प्लस गोनो एंड मेट्री. Okay, so what do you mean by try? Try means it is 3, gono means angles, and metric means measurement. So trigonometry is a branch of mathematics in which we will discuss about the 3 angles of a right angle triangle and their measurement. Okay, so we have some basic trigonometric functions. Trigonometric functions which are known as, the first one is sin theta, second one is cos theta, third one is tan theta, number 4 cosec theta, fifth one sec theta, and the last one is cot theta. So we have 6 basic trigonometric functions that are known as sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. If we want to measure them, we have to remember one formula from our 10th class that is known as Pandit Badri Prasad Har Bol. If you guys remember that, so we can easily understand what are the trigonometric functions and how we can measure them. सो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मेजर करना है तो अपने पास क्या होते हैं, 3 इसके बहुत ही बेसिक हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला. कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर बोल. P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, B मीन्स बेस. सो इफ यू वांट टू मेजर साइन थीटा, वी हैव अ फॉर्मूला दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हियर P upon H is known as sin theta. P upon H. Okay. Now we have cos theta that is known as base upon hypotenuse. ओके. टेन थीटा बेसिक हम ये कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे कि हमारे पास अगर हम 2 बेसिक की बात करें कि जो सबसे कॉमन या फिर बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं विच आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और जो बाकी के बचे हुए हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे वो सारे ड्राइव होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा से. हम ये कह सकते हैं टेन थीटा हमारे पास जो होता है ये होता है हमारे पास कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हियर, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is base upon hypotenuse. Hypotenuse will be cancel out from here. Okay, so we will get perpendicular upon base for tan theta. तो हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे tan theta is equal to कितना हो जाएगा, P upon B. Okay, now we will move forward that cos theta is a reciprocal of sin theta. If the value of sin theta is perpendicular upon hypotenuse, then the value of cosec theta will be reciprocal of sin theta. That means hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse upon perpendicular. Understand? इजी चीज़ है बिल्कुल. यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर देखो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, तो हम कॉसेक थीटा कह सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. उल्टा होता है रेसिप्रोकल का, बिल्कुल ठीक है, कॉसेक थीटा का. ऐसी बात करें यहाँ पे सेक थीटा की, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा दैट इज नोन एज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. द लास्ट वन इज कॉट थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. So we can measure that the all trigonometric function can be measured with the help of the side of a right angle triangle. These are the sides in a right angle triangle. We have 3 sides. Let's say ABC is a right angle triangle. Here angle B is 90 degree or right angle triangle. So the longest side of the triangle is always known as hypotenuse. Okay. The longest side of the trigonometry, we say the longest side of right angle triangle is always known as hypotenuse. सबसे लंबी साइड किसी भी right angle triangle की कहलाती है hypotenuse. If we say angle C is theta, what is angle C is theta? So we can say that the side opposite to the, or जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर. क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर. एंड द रेस्ट साइड इज नोन एज बेस. तीसरी साइड जो बचेगी हमारे पास उसे कहते हैं हम लोग बेस. तो अगर आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी कैन से दैट द साइड कैन एक्चुअली मेजर द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो वी विल ड्रॉप दैट एंड मूव फॉरवर्ड. आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट दिस आर बेसिक मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री which we can use in the physical derivation. Okay. Now
We have many basic formulas, identities which are used in mathematics, which are used in trigonometry as physical derivation. So we will start from we have 54 formulas which are derived from basically 3 rules. Okay, but we can say that if you know about the Cartesian plane, what is a Cartesian plane? This is a Cartesian plane in which two axes intersect each other. Let's say XOX is x-axis, okay, and y dash is known as y-axis. Okay, so when two axes intersect each other in a plane, that plane is known as Cartesian plane. Okay, then we get fourth quadrant. It is first quadrant, that is second quadrant, that one is third quadrant, and that is fourth quadrant. So in class 10th आप लोग सभी ने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइंस के या फिर वैल्यूज़ को कैसे मेजरमेंट करते हैं. तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे याद करें, ऑल सब टी कॉफ़ी. कुछ तुक तो इसका बैठता नहीं है फिर भी, लेकिन याद करने थोड़ा आसान रह जाता है कई बार. ऑल सब टी कॉफ़ी. ऑल मीन्स कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव. ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव. दैट मीन्स इफ द एंगल ऑफ angle theta, the value of angle theta is lie between 0 degree to 90 degree, that is 0 degree, and that one is 90 degree, pi by 2. Okay, so if the value of theta will lie between 0 degree and 90 degree, the value of the functions, all trigonometric functions will always be positive. सारी वैल्यू कैसे निकलेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव निकलने वाली है. कौन से वाले में, पहले वाले क्वाड्रेंट में. बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, द फर्स्ट वन ऑफ द सब इज नोन एज साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cosec थीटा विल बी पॉजिटिव एंड द रेस्ट ऑल फंक्शन विल बी नेगेटिव. यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपकी साइन और कॉसेक की वैल्यू है सिर्फ वही पॉजिटिव रहने वाली है, इसके अलावा सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगी. थर्ड वाले में बात करें तो थर्ड वाले में टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव. फोर्थ वन में सी हमारे पास है, यहाँ पे सी मीन्स कॉस थीटा एंड सेक थीटा. यानी कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होने वाले हैं, अदरवाइज बाकी सारे फंक्शन कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट रूल इज दैट, फर्स्ट वन आप समझ चुके हैं. यहाँ पे सेकंड रूल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इट से दैट इफ इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वी यूज एंगल 90 डिग्री एंड 270 डिग्री. देयरफॉर जब भी आपका थीटा की वैल्यू 90 के साथ चेंज हो रही है या फिर 270 के साथ चेंज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये हो जाते हैं आपस में इंटरचेंज. साइन थीटा बन जाता है कॉस थीटा और कॉस बन जाता है साइन थीटा. ऐसी बात करें यहाँ पे, जो टेन थीटा होता है ये बन जाता है कॉट थीटा और कॉट थीटा बन जाता है हमारे पास टेन थीटा. ओके, लास्ट वन हमारे पास क्या है, जो कॉसेक थीटा है ये इंटरचेंज हो जाता है सेक थीटा में और सेक थीटा कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से कॉसेक थीटा में. ठीक है, अभी फिलहाल इसको समझिए, आगे इसका करा के दिखाएंगे आपको किस तरीके से फॉर्मुले इसमें बनते हैं. यहाँ पे हमारे 54 फॉर्मुले बना सकते हैं बेसिकली इन 3 रूल से. ठीक है ना. लास्ट वन करेंगे यहाँ पे. थर्ड रूल हमारे पास इस तरीके से होता है, अगर एंगल आपके पास 360 डिग्री और 180 डिग्री बन जाता है, अगर आपका कोई फंक्शन इस तरीके से है जो कि चेंज हो रहा है 360 डिग्री या फिर 180 के साथ, तो ऐसी वाली कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंजेस. यानी कि आपका अगर साइन है तो साइन वाला साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस वाला कॉस ही रहने वाला है, नो इंटरचेंज. ओके, एंड द लास्ट वन, द फोर्थ वन, दैट ऑल नेगेटिव एंगल्स will lie in fourth quadrant. That means we all know that if we have this a terminal line and this vertex, this angle is positive. If we move anti-clockwise, the angle will be positive, but we move clockwise, that we get the negative angle. इसका मतलब ये कि ऑल नेगेटिव एंगल्स विल बी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. नेगेटिव एंगल्स वो होते हैं जो 0 डिग्री से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ को आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो वैसे भी आपको दिख रहा है साहब यहाँ पे, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ से तो ये होता है पॉजिटिव एंगल्स. यहाँ पे ऐसे अगर आप करते हैं 0 डिग्री से क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं नेगेटिव एंगल्स. और नेगेटिव एंगल्स कहाँ लाई करने वाले हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाले. तो अगर आपको ये 4 रूल आपको बेसिक समझ में आते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको ये समझ में आता है तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री के 54 फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं बिना इसको याद करें. आपको 54 फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है. आपको बहुत बड़ा नंबर है 54 नंबर. 54 फॉर्मुलाज अगर आपको याद करने हैं, और अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई उनको हम 3 फॉर्मुलों से ही बेसिकली डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जानेंगे भैया कैसे करेंगे इसको डिराइव. आगे बढ़ते हैं. इसमें आपको 4 याद रखने हैं बस इसके बारे में. ठीक है, तो बेसिक फॉर्मुला हमारे पास यही है इसके लिए. अब देखेंगे भैया कौन से वाले वो फॉर्मुलाज हैं जिनको हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं. ओके, so we will start from the negative angles. First one is sine minus theta.
मैंने आपको कहा था यहाँ पे जब भी क्या होता है ऐसे टाइम पे आपके जो नेगेटिव एंगल्स आते हैं, इस टाइम पे जो आपके सारे एंगल होते हैं ये लाई करते हैं कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर यहाँ पे साइन माइनस थीटा हमारे पास है तो ये इक्वल बनता है यहाँ पे माइनस का साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के, ओके, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे एंगल कैसे होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो साइन यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितनी मिलती है हमको यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा। ऐसे अगर हम बात करें कॉस माइनस थीटा के बारे में, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस का कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं यहाँ पे, नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे फिर हमारे पास मिलेगा यहाँ पे टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू बनेगा माइनस का टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास माइनस का कॉसेक थीटा। आगे बढ़ेंगे और सेक माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा। कॉस और सेक कैसे होने वाले हैं, फोर्थ में पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हमारे पास यहाँ पे फिर हमारे लास्ट में हमारे पास कॉट थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉट थीटा। तो पहले 6 फॉर्मूले तो आपके पास ये हो गए, ठीक है। आगे 6 बढ़ेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आने वाले हैं कौन से, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको कहा था यहाँ पे जब भी आपके एंगल 90 या 270 में चेंज होते हैं तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन का बनता है मेरे पास क्या बनने वाला है यहाँ पे, कॉस थीटा बन जाएगा, तो वैल्यू तो कॉस थीटा आ गई, लेकिन क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसको देखने हमें देखना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करता है। अगर हम देखें इसको, हमारे पास एंगल इस तरीके से होते हैं, ये 0 डिग्री हमारे पास है, ये 90 डिग्री हमारे पास है, तो अगर 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं आपके पास, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। साइन का कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस में। ऐसी बात करें कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बनता है मेरे पास साइन थीटा। कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। और जो कि हमारे पास पहला जो एंगल है हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये लाई करता है कौन सा वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल कैसे मिलते हैं हमको, साइन थीटा मिल जाएंगे। ऐसे आगे बढ़ाएंगे इसमें tan 90 माइनस थीटा ये इज इक्वल टू मिलेगा हमको कितने यहाँ पे, कॉट थीटा। tan कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉट में। कॉट की बात करेंगे यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास tan थीटा। फर्दर अगर बात करें आगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन जाता है हमारे पास सेक थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा विल कन्वर्ट इनटू कॉसेक थीटा। Okay, these all angle are lie between first quadrant, so therefore the function, the value of the trigonometric function will be positive. Okay, now we will move forward and discuss about the sin 90 plus theta. Here the angle is 90 plus theta and 90 plus theta here it will lie in the second quadrant. ओके, सो साइन कन्वर्ट हो रहा है 90 के हिसाब से। जब भी एंगल 90 और 270 होते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटरचेंज कर देना आपने। तो फंक्शन यहाँ पे किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, 90 के हिसाब से चेंज हो रहा है आपके पास। और साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, कॉस थीटा बन जाएगा अपने आप में। अब क्योंकि यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, अदरवाइज बाकी एंगल कैसे हो जाते हैं आपके पास यहाँ पे, नेगेटिव मिल जाएंगे। तो ये मिलेगा आपको प्लस का कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमको कॉस 90 प्लस थीटा, ये आएगा माइनस का साइन थीटा। माइनस क्यों आया यहाँ पे, माइनस आने का रीजन ये है कि कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इसमें हमारे पास tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास कॉट थीटा और नेगेटिव का, क्योंकि tan भी कैसा होता है इसमें, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। फोर्थ वन बात करेंगे यहाँ पे, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू बनेगा आपके पास यहाँ पे माइनस का tan थीटा। फिफ्थ वन कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू बनेगा प्लस का कॉसेक थीटा, सॉरी प्लस का सेक थीटा। कॉसेक को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पे, प्लस का सेक थीटा। एंड लास्ट वन सेक 90 प्लस थीटा विल कन्वर्ट इनटू माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा, क्योंकि भाई हमारे पास सेक यहाँ पे एंगल है, और सेक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल माना जाता है। ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें अब इसी तरीके से बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कितना हो गए, 6 6 और 6 18 हो चुके हैं आपके पास यहाँ पे। बाकी और ऐसे बात करते हैं इसका 54 फॉर्मूले कैसे बनने वाले हैं। ओके, सो वी विल मूव ऑन नाउ साइन 180 माइनस थीटा, sin 180 minus theta. So 180 minus theta will be lie in the second quadrant. This is 180.
ओके, यानी कि पाई भी कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे। ये हो जाएगा आपके पास 270 और ये हो जाएगा आपका दोबारा यहाँ पे 360 एंगल, कंप्लीट एंगल बन जाएगा आपको यहाँ पे। तो 180 माइनस थीटा वो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपको जब भी आपका एंगल 180 होता है या फिर 360 बनता है तो ऐसी वाली कंडीशन में आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, नो इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, साइन का तो बनेगा साइन थीटा आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगल पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। अब हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी एंगल कैसे होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन है हमारे पास, तो कैसे मिलेगा आपको यहाँ पे साइन थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास बात करें इसमें, ये आता है हमारे पास कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, माइनस का कॉस थीटा। देखो इंटरचेंज तो नहीं होने वाले, लेकिन कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का कॉस थीटा। आगे बात करें हमारे पास tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास, माइनस का tan थीटा। tan भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है हमारे पास। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू बनेगा प्लस का कॉसेक थीटा। कॉसेक भी कैसा होता है यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे। सेक की बात करें तो सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास माइनस का सेक थीटा। और लास्ट वन कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास यहाँ पे कितना, कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। तो इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भैया कौन से वाले एंगल में कितना चेंज आ सकता है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वाली चीज़ें नेगेटिव रहती हैं। यहाँ पे अगर हमारा एंगल क्या होता है 180 प्लस थीटा बन जाएगा अगर यहाँ पे, तो वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी 180 प्लस में, वो लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट में, जिस वजह से क्या होगा आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे चेंज हो जाती है अपना आप इस वजह से, ठीक है। तो फिफ्थ वन बात करें अगर यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, जो 180 प्लस थीटा है ये लाई करेगा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम ये सब जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलने वाले हैं। अच्छा देखिए 180 में आपको फंक्शन को चेंज भी नहीं करना है, तो साइन का कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा। साइन तो नेगेटिव बनेगा यहाँ पे। बात करें कॉस की बात कर लेते हैं, तो कॉस 180 प्लस थीटा ये भी कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे, माइनस का कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा ये कितना बनने वाला है आपके पास यहाँ पे, प्लस का tan थीटा। ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा tan थीटा। फिर आगे बात करें कॉसेक के लिए बात कर लेते हैं, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे माइनस का कॉसेक थीटा। फिर बात करें सेक की बात कर लेते हैं, तो सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का सेक थीटा। और लास्ट वन हमारे पास कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू बनता है हमारे पास यहाँ पे प्लस का कॉट थीटा, जस्ट बिकॉज tan थीटा और कॉस थीटा हमारे पास कैसे रहने वाले हैं यहाँ पे, पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो इसीलिए क्या होगा आपके लिए यहाँ पे बाकी जो सारे एंगल आपके बनेंगे यहाँ पे, देखिए फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं रूल हमारे इस तरीके से कि 180 में और 360 में आपको चेंज नहीं करना है फंक्शंस को। लेकिन जो वैल्यू है उसकी कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट पे अगर जिस तरीके से चेंज होगा आपको वैल्यूज को उस हिसाब से चेंज कर देनी है यहाँ पे। आगे इस तरीके से कैसे बनेंगे आपके पास यहाँ पे, फिफ्थ वन सिक्स वन आपका बनेगा यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा। सेवंथ वन बनेगा आपको यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा। फिर बनेंगे आपको यहाँ पे एट्थ वन बनेगा आपके लिए साइन 360 माइनस थीटा। और यहाँ पे कितना बनेगा, नाइन्थ वन बनेगा हमारे पास साइन 360 प्लस थीटा। और लास्ट आपके लिए 10th बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा यहाँ पे, अच्छा वो बना चुके हैं हम लोग यहाँ पे, तो 9 बनने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हम देखें यहाँ पे 6 9 कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको ड्राइव करेंगे आगे तरफ को यहाँ पे इन फंक्शंस को, उन 4 रूल से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको इनको 54 फॉर्मुलाज को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। बाकी कुछ अगर हम आगे बात करें तो आगे इसको नोट करने वाला नोट कर सकते हैं। और आगे बात करेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इन द फिजिक्स। ओके चलिए बात कर लेते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ आपको यहाँ पे याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। पहले तो क्लास 10 पे अपन लोग जब थे तो अपने को याद करना पड़ा था यहाँ पे इसके बारे में, लेकिन इसका आसान तरीका होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बना सकते हैं ऑन द स्पॉट। कैसे बनाएंगे यहाँ पे, पहले आपको यहाँ पे लिखने अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। अब करना क्या आपको यहाँ पे, आपके लिए बेसिकली सिर्फ आपको एक ही निकालना पड़ेगा, एक को आप निकालेंगे बाकी सारे अपना बन जाएंगे। यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको साइन थीटा को निकालना है तो करना क्या आपको, पहले यहाँ पे आपको 0 से लेकर 4 तक की यहाँ पे नंबर्स को आपको नोट कर देना है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 90 तक। 180 को फिलहाल छोड़ देंगे फिलहाल अभी आगे के लिए, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में। अब सभी नंबर्स को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे 4 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, ओके। अब सब में लगा देना आपको अंडर रूट, क्या लगाना है यहाँ से, अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पे सभी के ऊपर। अब जो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करके आने वाली है वो निकलती है आपके लिए साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले बात करें साइन 0 की बात करेंगे तो 0/4 कितना होता है आपके लिए, 0 होता है। अंडर रूट ऑफ 0 कितना आ जाएगा आंसर,
जीरो मिल जाएगा आपको इसके लिए, ठीक है। ऐसी बात करें 1 का अंडर रूट निकलता है 1 और 4 का निकलने वाला है 2, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। इसके लिए अगर बात करें तो रूट 2 का तो कोई रूट निकलता नहीं, इसको हम 2 लिखेंगे, लेकिन 4 का निकलता है कितना 2। लेकिन इसको अगर हम आगे होल सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा आपको यहाँ पे √2/2 को मैं लिख सकता हूँ कितना √2 × √2, कितना लिखेंगे इसको √2 × √2, रूट से कट जाएगा आपका √2, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे 1/√2, कितना आने वाला है 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए 1/√2 हो गई। ऐसी बात करें यहाँ पे साइन 60 के लिए तो √3 के तो कोई निकलता है नहीं, इसको लिखेंगे √3 और 4 का निकलता है यहाँ पे 2, तो वैल्यू कितनी जाएगी इसके लिए √3/2। ऐसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 4 में से 4 कट जाएगा, 1 टाइम्स कटेगा, √1 का 1 कितना होता है हमारे पास 1 निकल जाएगा आपको, ठीक है। अब करना क्या आपको यहाँ पे आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल गई आपके लिए, ठीक है। अब करना क्या आपको कॉस थीटा को लिखते टाइम आपको साइन को उल्टे से लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि जो वैल्यू साइन 90 में है उसको आपको लिखना है यहाँ पे साइन 0 में, सॉरी कॉस 0 में। तो कितना बनेगा यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपके लिए √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और लास्ट में कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे इतना। आगे बात करते हैं टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको टेन थीटा इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे आपस में तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे 0/1 कितना होता है 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0 आ गया। 1/2 और अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 1/√3। ये कैसे आया देखो साइड में अगर सॉल्व करें इसको, ये 1/2 और अपॉन में कितना यहाँ पे √3/2, कि 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे अपना अभी, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 1/√3। इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। आगे बढ़े यहाँ पे ये 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 दोनों कट जाएंगे आपस में, कितना बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा यहाँ पे। इस वाले में देखिए √3/2 और डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 काट देंगे इसमें, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे √3 मिल जाएगा आपको। और 1/0 कितना होता है इन्फिनाइट, कितना होता है यहाँ पे इन्फिनाइट। ध्यान रखेंगे अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मान लो कि नंबर ए है मेरे पास, आपने इसको डिवाइड करा 0 से, तो आंसर कितना आता है हमेशा इन्फिनाइट आता है हमेशा। ऐसे अगर हम बात करें आपने 0 को डिवाइड करा किसी नंबर से तो आंसर कितना आता है आपके लिए 0 आ जाएगा। ये आपको याद करने की जरूरत है यहाँ पे, इतना सिंपल बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करा तो आपका आंसर हमेशा कितना मिलता है आपको इन्फिनाइट मिलने वाला है यहाँ पे। तो हमने ऐसे करा 1/0 कितना हो जाएगा आपके लिए इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें कॉसेक थीटा की बात करते हैं, तो कॉसेक थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका साइन थीटा का। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 0/1, रेसिप्रोकल कितना होना चाहिए इसका 1/0 हो जाएगा, सॉरी है ना। तो 1/0 कितना होता है मेरे पास इन्फिनाइट होता है। इसका रेसिप्रोकल करिए ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 बन जाएगा, और 1 का कितना होता है 1 ही होता है हमारे पास, ठीक है। सेक को लिखने के लिए कॉसेक को उल्टा कर दो, है ना। या फिर अगर बात करें ये कॉस का वो भी होता है रेसिप्रोकल भी होता है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास 1 का उल्टा कितना बनता है 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 हो जाता है इन्फिनाइट, कितना हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनाइट। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट में बात करेंगे कॉट थीटा की, तो चाहे तो भैया आप इसको 10 को रेसिप्रोकल कर दो यहाँ से, तो 0 कितना बनेगा 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/√3 3 बन जाएगा हमारे पास √3, 1 का 1 आ जाएगा, √3 का बनेगा 1/√3, और इन्फिनाइट का उल्टा बन जाता है 0, कितना बन जाता है 0। क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ को बना सकते हैं, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे इतना यहाँ पे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उनके कुछ पर्टिकुलर एंगल में अगर आपको उनकी वैल्यूज चाहिए तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करा देंगे इसको आपको। अगर आपको पहले साइन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू को लिखेंगे पहले यहाँ पे 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और सबके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ये आपका बेसिक स्टेप है यहाँ पे। अब आपको जो वैल्यूज यहाँ से निकल के आने वाली है ये निकलती है साइन थीटा के लिए। जैसे हमने यहाँ पे बोला 0/4 कितना होता है 0 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0 आ गई। 1/4 का रूट कितना बनता है हमारे पास 1/2 बनता है। √2/√4 कितना बनेगा 1/√2 बन जाएगा, ये बन जाएगा √3/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए 1 सिंपली यहाँ पे। अब सेक को कॉस को लिखने के लिए आपको साइन को उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करिए आप, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा आपको 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 0। ऐसी फर्दर अगर हम बात करें टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा क्या होता है रेशियो होता है किसका साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी टेन थीटा की। कॉसेक थीटा निकालने के लिए आपको साइन को उल्टा कर देना है। क्या करना है आपको साइन को उल्टा कर देंगे। सेक निकालने के लिए आपको कॉस को रेसिप्रोकल कर देना है। कॉट निकालने के लिए आपको टेन को रेसिप्रोकल कर देना है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाती है इसके लिए अपनी। क्लियर आप इतना, इसको नोट कर लेंगे फटाफट से।
चलिए, तो आपने ये नोट कर ही लिया होगा। अब हमारे पास एक कॉलम बचा है किसके लिए, 180 के लिए बात करेंगे यहाँ पे कि आपको 180 का कैसे याद करना है। अब देखिए 180 का आपको फिलहाल तो मैं चाहूँगा कि आप याद कर ही लें इसको बनाने का तरीका हमारे पास फिलहाल है नहीं। अगर हम बात करें साइन 180 की बात करें तो साइन 180 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। कॉस 180 की बात करें तो ये कितना होता है हमारे पास, -1 होता है हमारे पास। अगर मैं आपको साइन की बात करूँ तो साइन 180 का मतलब पाई होता है यहाँ पे, ठीक है। 180 को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो साइन के किसी भी पाई में अगर बात करूँ n पाई, n पाई मतलब है अगर हम साइन पाई में बात करें, साइन 2 पाई में बात करें, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, है ना, एंड सो ऑन। अगर हम आगे बढ़ते रहें इस तरीके से तो हर एक पाई में आपको साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करते हैं कैसा, साइन तेरा पाई, मेरा पाई, सबका पाई, तो कैसा होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ऐसी बात करें किसके लिए, कॉस की बात करें तो कॉस हमारे पास पाई में कितना मिलता है आपको, हमेशा -1 मिलने वाला है। अगर मुझे tan को निकालना है 180 में तो मैं जानता हूँ tan क्या होता है, रेशियो होता है किसका, साइन का और कॉस का, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा ये हमारे पास 0 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऐसी फर्दर आप बाकी को डिवाइड कर सकते हैं। कॉसेक कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है हमारे पास, इन्फिनाइट, तो कॉसेक 180 में कितना होता है, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऐसी बात करेंगे सेक के लिए तो सेक होता है किसका उल्टा, कॉसेक का उल्टा, तो कितना बनेगा यहाँ पे -1 बन जाएगा। ऐसी बात करेंगे किसके लिए, कॉट की बात करेंगे 180 में तो 0 का उल्टा कितना होता है हमारे पास, इन्फिनाइट। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास जब लिखी हैं बोर्ड में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रीज, है ना, फिजिक्स के हमारी डेरिवेशंस में, एंड उसके आगे तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में यहाँ पे। तो पहले हमारे पास जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं पहले भी इस वाली को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसी कुछ आइडेंटिटी हमारे पास और है यहाँ पे बहुत सारी, जो आपके बहुत काम आने वाली है, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं सभी को, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। बच्चों को क्या लगता है कि बहुत सारी आइडेंटिटी लिखा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इतनी सारी आइडेंटिटीज है, कैसे हम इसको याद कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप इसके हैबिचुअल होते हैं, आपको डेरिवेशन धीरे धीरे आप करते हैं, इसको आप यूज में लेके आते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो आपको समझ में आती है बहुत बेहतर तरीके से, और याद भी हो जाती है खुद से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन कुछ अगर मैं आपको बोलूँ कि जो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज में आने वाली है, वो यहाँ पे 2 लिखी है हमने इस तरीके से। पहला कौन है हमारे पास, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल का हाफ हो जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे कितना हो गया, एंगल हाफ होके a बन गया। अगर यहाँ पे एंगल a होता साइन a तो इक्वल टू कितना बनता, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, आपके एंगल को हाफ कर देना है आपने यहाँ पे, ओके। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 कॉस थीटा इक्वल टू बनता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर बना सकते हैं इसको इतना हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकते हैं इसको। एक और इसके लिए हमारी बनती है वो हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी यहाँ पे थीटा लिख दिया, आप इसको यहाँ पे a लिख लेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसी कुछ आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे भी लिखी है हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी के लिए, साइन सी माइनस साइन डी के लिए लिखी है यहाँ पर आइडेंटिटीज। तो इन आइडेंटिटी को आपको नोट करना है और इनको आपको याद रखना है, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों के साथ जिनको पसंद आए। ऐसे करके हमने आपके लिए 6 वीडियो हमने डिजाइन करे हैं यहाँ पे, जो सिर्फ बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स में ही काम करने वाली है। मैथमेटिकल टूल जो आपके फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले। देखिए मैथ्स वाले बच्चे तो इसको पढ़ लेते हैं जिन लोगों ने PCM लिया है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि उनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है। तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि फिजिक्स में पूरा मैथमेटिक्स घुसा रखी है, डेरिवेशन कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी यहाँ पे। तो उसको समझने के लिए जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल आपके लिए जो हमने डिजाइन करा है यहाँ पे, 6 क्लासेस डिजाइन करी हैं आपके लिए, आपको लगातार मिलती रहेंगी वीडियोज़ के बारे में। तो पहले हमने यहाँ पे कवर करा आज ट्रिग्नोमेट्री, आगे जाके पढ़ेंगे बाकियों के बारे में। थैंक यू सो मच।